Hi, this is Dr. Ashutosh Sharma. I am Assistant Professor in JNU College of Physiotherapy, and today we are going to study about the electrotherapy simplified. Means what are the things that we discussed in earlier lecture about the electrotherapy, we are going to study further about that, right? So we are going to start with the electrotherapy definition. What is electrotherapy basically? If you see on the screen, there is a mention use of electricity for the therapeutic purpose. I mean, whatever the current, electrical current you are using to gain the therapeutic effect, that is called electrotherapy. Okay, so you can define this is the application. This is the application of exogenous electrical stimulation or thermal agents. It can be heat or it can be cold, transmitted through into the body via electrophysical agents or EPA modalities for a therapeutic purpose. So there are some words EPH and the electrophysical agents or electrophysical modalities. We discussed in earlier classes, electrophysical agents are the agents that we use, the modality that we use to treat the patient. These are the machines, these are the devices that we use, and they have electrical current and they produce therapeutic current to give some healing effect or the therapeutic effect to the client or the patient. If you see in another word, we can say all electrotherapy modalities involve the introduction of some physical energy into the biological system. This energy brings about one or more physiological changes which are used to the therapeutic benefit. So what are the physiological changes? If you talk about the physiological changes, if you see, we have some pressure of the blood in the body, we have circulation of the blood in the body, we have temperature, we have the different metabolic system. तो बॉडी के अंदर बहुत सारे बदलाव होते रहते हैं बिकॉज ऑफ द मेटाबॉलिक सिस्टम. सपोज अगर मेरी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है यानी मुझे हीट गेन होता है या मुझे हीट लॉस होता है, तो दिस इज ऑल अबाउट द मेटाबॉलिक सिस्टम. अगर मेरी बॉडी के अंदर कुछ कंडक्शन यानी कि कुछ करंट जनरेट होता है या फिर कुछ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो होता है नर्व्स के अंदर या फिर मसल्स के अंदर. तो हमारी नर्व और मसल एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे काम करती है. उसका एक पैरामीटर होता है यानी कि एक उसी के बाद एक प्रॉपर वैल्यू के बाद में नर्व और मसल को हम लोग एक्साइट कर सकते हैं या स्टिमुलेट कर सकते हैं, right? So whatever the modality or whatever the agents or the devices or machine that we are using, we want to stimulate that muscle or the nerve or the any other tissue of the body. Okay, we'll take the example in the next slides. So what are the tissue and how we use that, right? So how we can define electrotherapy? We are going further. If you see on the screen, there is a definition. Electrotherapy is the treatment of patient using electrical modalities that apply therapeutic current directly to the body tissue to get the therapeutic benefit. That we cleared all the things. What are the electrical current we discussed earlier? We are going to discuss further more today now in the next slides, and we are going to discuss the how the diagnosis and therapeutic purpose we use the electrical machine and the devices. So there is a term in your screen. You can see the bioelectricity. What is bioelectricity? Okay, तो बायोइलेक्ट्रिसिटी बेसिकली होता क्या है? अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने कहा कि हमारी बॉडी खुद से कुछ फंक्शंस करती है या खुद से कुछ काम करती है. सपोज एग्जांपल लो हीट गेन हीट लॉस का, यानी टेम्परेचर बढ़ने का और टेम्परेचर कम होने का. सपोज मुझे फीवर आ जाता है, मेरा टेम्परेचर 100 हो गया है. 100 मीन्स मेरा टेम्परेचर नॉर्मल जो कि 98.3 डिग्री है उससे बढ़कर 100 चला गया है, यानी कि मेरी बॉडी के अंदर जो है तापमान वो बढ़ गया है. तो उस कंडीशन के अंदर हम लोग कोई भी मॉडलिटी जो कि हीटिंग है नहीं लगाएंगे, राइट? सो व्हाट वी रिक्वायर्ड सम काइंड ऑफ कोल्ड थेरेपी. अगर आपने देखा होगा बुखार के अंदर या फीवर आ जाने के बाद हम लोग कोल्ड कंप्रेशन अप्लाई लगते हैं. पेशेंट को कोल्ड अप्लाई किया जाता है एक्जिला में, नेक के पीछे या फिर आपके थाइज में, है ना, डिफरेंट पार्ट में, फोरहेड के ऊपर हम लोग कोल्ड अप्लाई करते हैं. क्यों अप्लाई करते हैं? टू रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, ओके, जो कि बढ़ गया है, राइट? तो ये बॉडी के अंदर अपने आप से चेंजेस आते हैं. उसी तरह से होता क्या है, इफ यू सी कि इधर कुछ कंपोनेंट होते हैं जो बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट करते हैं. लाइक हाउ बायोइलेक्ट्रिसिटी रेफर्स टू ए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड करंट occurring within or produced by living organism. It results from conversion of chemical energy into the electrical energy, right? So it results from the conversion of chemical energy into the electrical energy and are generated by the number of differential biological process. यानी कि body के अंदर if you see the motor system, we have sensory system, we have autonomic nerve system. If you see the autonomic nerve system means automatically body काम करती है उस सिस्टम के लिए जो कि बॉडी को रेगुलेट करता है, यानी कि हर कंडीशन के अंदर.
तो उसके अंदर कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर अवेलेबल होती है। ओके, मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा। इफ यू सी, ब्रेन के अंदर कुछ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, कुछ एक्टिविटी हमारे हार्ट के अंदर होती है। इफ यू सी, कुछ एक्टिविटी हमारे मसल्स और कुछ एक्टिविटी हमारे नर्व्स के अंदर होती है, राइट? So bioelectrical potentials are generated by a number of different biological processes and used by the cell to govern metabolism, to conduct impulses and along nerve fibers and to regulate muscular contraction. What it means basically, अगर हम बात करें जैसे हमारे घर के अंदर अगर करंट दौड़ रहा है तो उसके लिए प्रॉपर फिटिंग है और हमारे पास बहुत सारे वायर्स हैं, राइट? तो हमारी नर्व्स वायर की तरह काम करती है, यानी कि उसके अंदर बहुत सारा करंट जो है वो दौड़ता रहता है। एंड दोज नर्व सप्लाई टू अवर मसल्स, राइट? यानी कि नर्व की सप्लाई कहाँ होगी? मसल्स में। जैसे कि इलेक्ट्रिकल करंट जो आपके घर का है उसकी सप्लाई होती है बोर्ड के अंदर। फिर बोर्ड के अंदर अगर हम लोग कोई सी भी मॉड्यूलिटी या सपोज एग्जांपल लो, हमारा फोन कनेक्ट करते हैं तो चार्ज होना शुरू हो जाता है। द सेम थिंग, जो कि नर्व के अंदर जो करंट दौड़ रहा है वो आपकी मसल्स को जाता है और उसकी वजह से हमें मसल्स का क्या मिलता है? कॉन्ट्रैक्शन मिलता है या मसल की एक्टिविटी मिलती है। अगर सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन है, सपोज इफ वांट टू मूव माय हैंड, मेरा हाथ मुझे मूव करना है, तो जो कॉन्ट्रैक्शन होगा दैट विल बी वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन, सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन। तो उसके लिए हमारी नर्व सिग्नल भेजती है मसल्स को और हमारा कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है। अगर हम बात करें कि अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगा। सपोज अगर तुमने वॉलंटरी कुछ मूव किया और कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, मतलब कुछ न कुछ या तो नर्व में प्रॉब्लम है या फिर मसल के अंदर इशू है। इट कैन बी आइदर नर्व प्रॉब्लम और इट कैन बी आइदर मसल प्रॉब्लम। तो वी हैव टू डायग्नोस एंड वी हैव टू ट्रीट विद द current or with the electric current or with the therapeutic current according to our domain, right? So to conduct to regulate the muscle contraction, then in most organism bioelectrical potential vary in strength from 1 is several to 100 millivolts, यानी कि अलग-अलग में अलग-अलग मेजर होता है। If you see, if you talk about the nerve and muscle, it is minus 90 millivolt and it is minus 70 millivolt in our human body, जो कि आपका resting membrane potential रहता है। तो अगर हम बात करें तो हम लोग जो बॉडी की बायोलॉजिकल एनर्जी है या बायो इलेक्ट्रिसिटी है उसको हम लोग काम में लेते हैं आइदर डायग्नोसिस पर्पस और आइदर थेरेपेटिक पर्पस। मैंने एक एग्जांपल दिया था इससे पहले, यानी कि अगर तुम्हारा हार्ट पंप करता है, उसकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, वी कॉल देम स्मूथ मसल्स। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करती है तो क्या होता है, बेसिकली हम लोग हार्ट की एक्टिविटी का पता कर सकते हैं कि हार्ट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, सो अगर हम बात करें कि अगर उसका कॉन्ट्रैक्शन कम हो गया है या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कम हो गई है तो क्या होगा, बेसिकली हार्ट काम नहीं कर रहा है। तो हमें पता कैसे चलेगा, हमें क्या करना है, उसके लिए हमें कुछ टेस्ट करने होंगे जिससे हमें पता चलेगा कि ये अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन our domain as a physiotherapist is not a diagnosis. In some cases, in muscle and nerve, we used to do diagnose, but in cardiac condition and brain condition, we don't diagnose the things. Diagnose का मतलब होता है basically कि आप investigate करते हो, पता करते हो, result से पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम है उस बेसिकली उस पार्ट के अंदर या जिस चीज के लिए हम पता करना चाह रहे हैं वहां पे क्या डिसफंक्शन या प्रॉब्लम आ गई है, राइट? थेरेपेटिक का मतलब है कि सपोज तुमने प्रॉब्लम देख ली है डायग्नोस करने के बाद में, एंड नाउ यू आर गोइंग टू ट्रीट दैट कंडीशन विद द हेल्प ऑफ द फिजियोथेरेपेटिक इंटरवेंशन। इंटरवेंशन मींस ट्रीटमेंट, यानी कि फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के साथ तुम उसे ट्रीटमेंट देने वाले हो विद द सम हेल्प ऑफ मॉडलिटी, और यू कैन कॉल देम EPA, इलेक्ट्रोफिजिकल एजेंट, और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल मॉडलिटी, इलेक्ट्रोफिजिकल मॉडलिटी, doesn't matter. Okay, so it can be diagnosis or it can be therapeutic. If you see, there is a in your screen, if you see heart is contracting and heart electrical activity हम लोग किससे रिकॉर्ड करते हैं, that is called electrocardiogram. आपने सुना होगा, बेसिकली हमारे यहाँ पे कभी कभी किसी की फैमिली में इनका ECG हुआ है, ECG कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से हम लोग क्या पता करते हैं, हार्ट की जो जनरल एक्टिविटी है या कॉन्ट्रैक्शन एबिलिटी है उसका पता करते हैं और उसे चेक करते हैं। ओके, अगर मेरा हार्ट प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है तो हम क्या करते हैं, फिर उसे ट्रीटमेंट देते हैं, है ना? दैट इज द ट्रीटमेंट इज योर therapeutic intervention. Okay, but as a therapist we don't provide that, the cardiologist or cardiac surgeon do that. So we apply pacemaker to them. Pacemaker is a small device that is fitted into the cardiac region, और वहां पे वो क्या करता है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ाता है, यानी कि हम एक इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन डिवाइस इम्प्लांट कर देते हैं जो कि हार्ट के कॉन्ट्रैक्शंस को इंप्रूव करता है। क्लियर? ओके, नाउ वी गो टू द सेकंड थिंग। इफ यू सी मसल एक्टिविटी, मसल एक्टिविटी को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, मसल एक्टिविटी को हम रिकॉर्ड करते हैं
इलेक्ट्रोमायोग्राफी से। इलेक्ट्रोमायोग्राफी का मतलब यानी मसल्स की जितनी भी एक्टिविटी है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है या नहीं कर रही है, उसे रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग जो सिस्टम काम में लेते हैं फॉर डायग्नोसिस पर्पस, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमायोग्राफी, राइट। यानी मसल जो नर्व की सप्लाई के बाद कॉन्ट्रैक्ट हो रही है या नहीं हो रही है। सपोज आई एम मूविंग माय फिस्ट, तो ये कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसके करने से मेरे हाथ में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मेरे शोल्डर तक भी कॉन्ट्रैक्शन जा रहा है, और डिपेंड करता है कि मैं कौन से पार्ट को मूवमेंट करना चाहता हूँ या काम में लेना चाहता हूँ, तो वो वहीं जा रहा है। अगर मुझे सपोज कुछ भी इंजरी हुई है या ऐसा कुछ हुआ है कि मेरा ये मूवमेंट नहीं आ रहा है, तो मुझे प्रॉपर एक मसल जो कि इस मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है उसके लिए मुझे टेस्ट करवाना होगा, दैट इज योर डायग्नोस्टिक, राइट। और उसे हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोमायोग्राफी। नाउ वी टॉक अबाउट द थेरेपेटिक इंटरवेंशन that comes in our domain of physiotherapy, that is your electrical stimulation. Electrical stimulation means एक मसल जो काम नहीं कर रही थी, तुमने बाहर से एक मॉड्यूलिटी काम में ली जिससे उसको एक करंट दिया, that is your electrical current to therapeutic current, and you stimulated that muscle to work accordingly the function. यानी कि सपोज मेरा हाथ ऊपर नहीं उठता है और मेरी ये मसल जिम्मेदार है, this muscle is responsible for the movement of this, then what I have to do, I have to stimulate this muscle through the electrical stimulation machine, and I will get the movement of this muscle if this is in the limit of injury, or this there is a no greater extent of the injury, यानी कि मैं उसे एक मेरी ग्रेडिंग सिस्टम या फिर डायग्नोसिस के हिसाब से जो मैंने इलेक्ट्रोमायोग्राफी से किया है पता करता हूँ कि ये ठीक हो सकती है। Done? Okay, if you see the third example, it is on the screen. Brain electrical activity, and the fourth one is your nerve electrical activity. अगर हम बात करें ब्रेन की, आपको एक एग्जांपल दूंगा मैं सिंपल सा। अगर तुमने देखा है कहीं पे भी मिर्गी जिसे कहते हैं हम लोग, किसी को हो जाती है एपिलेप्सी अटैक आते हैं, पेशेंट को सीजर आना शुरू हो जाता है और पेशेंट कहीं पे भी लेट जाता है, फिर से हम लोग एक अगर या तो कॉफी स्मेल या फिर कोई डार्क स्मेल देते हैं या फिर कुछ ऐसा करते हैं तो ब्रेन फिर से अवेक होता है और उसकी जो ब्रेन की एक्टिविटी है वो फिर से रिगेन हो जाती है। तो इसे हम लोग एपिलेप्सी कहते हैं, यानी मृगी का दौरा बेसिकली। तो क्या होता है उसके अंदर, देयर इज अ सडन न्यूरोनल डिस्चार्ज ऑफ द ब्रेन। उसके अंदर वहां पे क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी सडनली बढ़ जाएंगी ब्रेन के अंदर, उसकी वजह से हमें सीजर जैसा महसूस होता है और शेकिंग मूवमेंट या फिर जो आपकी बॉडी की टाइटनेस है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें हो सकती हैं, वो आनी शुरू हो जाती है। तो उसे रिकॉर्ड करने के लिए हम डायग्नोसिस पर्पज के लिए क्या काम में लेते हैं, ईईजी काम में लेते हैं, इलेक्ट्रो एन्सेफेलोग्राम। ओके, देन इफ यू आई नो कि मुझे ब्रेन में इशू है, वहां पे स्टिमुलेशन नहीं आ रहा है, देन आई विल यूज सम थेरेपेटिक मॉडलिटीज जो कि एज ए फिजियोथेरेपिस्ट आई कैन यूज, दैट इज योर सपोज वी कैन से टीडीएस, ट्रांसक्रेनियल डायरेक्ट स्टिमुलेशन, जो कि हम ब्रेन के ऊपर कुछ इलेक्ट्रोड या कुछ मशीन्स को अप्लाई करते हैं और हम ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं, राइट। In coma we use the coma stimulation. In surgical if you see, so we can say the surgeon use the DBS, deep brain stimulators, जैसे कि हार्ट के अंदर पेसमेकर को अप्लाई करते हैं, वैसे ही ब्रेन के अंदर दे अप्लाई द डीप ब्रेन स्टिमुलेटर, जो कि ब्रेन की एक्टिविटी को मैनेज करते हैं या कंट्रोल करते हैं या वहां पर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को प्रोवोक करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम ना हो। डिपेंड करता है कंडीशन टू कंडीशन एंड द प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम, दैट इज डेफिनेटली वेरी। एज अ थेरेपिस्ट आवर डोमेन कम्स इनटू द फर्स्ट थिंग कम्स इनटू द मसल, सेकंड थिंग कम्स इनटू द ब्रेन। ब्रेन के अंदर कुछ लिमिटेड फंक्शंस है, कुछ लिमिटेड मॉडलिटीज और मशीन्स है जिन्हें हम काम में लेते हैं, बहुत सारी चीजें नहीं है जिन्हें हम काम में लेंगे, राइट। जिसके अंदर टीडीएस इज द वन मोस्ट एग्जांपल, ट्रांसक्रेनियल डायरेक्ट स्टिमुलेशन, जिससे हम ब्रेन की एक्टिविटी, मेमोरी, इंसोम्निया, नींद का नहीं आना, स्ट्रेस होना, इन सारी चीजों का ट्रीटमेंट करते हैं, राइट। Then if you see the nerve electrical activity, the most important nerve electrical activity के लिए हम कौन सी स्टडी करते हैं डायग्नोसिस के अंदर, that is your NCD, nerve conduction velocity study। सपोज मैंने एग्जांपल दिया, मेरा हाथ काम नहीं कर रहा है, हुआ क्या था, मुझे ट्रॉमा हुआ था, एक एक्सीडेंट के अंदर चोट लग गई और मेरा हाथ ऐसे नीचे गिरा हुआ रहता है। डॉक्टर ने मुझे कहा कि मेरा हाथ मुझे मूव करना है, लेकिन मैं अपना हाथ मूव नहीं कर पा रहा हूँ। अब मुझे पता नहीं है मसल की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से नहीं कर पा रहा हूँ, या इसके अंदर नर्व की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ, राइट। तो नर्व की प्रॉब्लम का मतलब है कि नर्व मसल को सप्लाई ही नहीं कर रही है, कहीं कहीं उसके अंदर इंजरी हो गई है, इसलिए मैं मसल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। यानी नर्व सप्लाई करेगी मसल्स को, देन आई विल कॉन्ट्रैक्ट माय मसल और आई कैन यूज दैट, राइट। तो मुझे ये पता करना है कि मसल के अंदर प्रॉब्लम है, तो मैं डायग्नोसिस के लिए क्या करूंगा, ईएमजी, इलेक्ट्रोमायोग्राफी। अगर मुझे पता करना है कि मुझे नर्व के अंदर तो प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, एनसीडी, दैट इज योर नर्व कंडक्शन
वेलोसिटी, राइट। तो नर्व कंडक्शन वेलोसिटी जो है वो आपकी नर्व की प्रॉब्लम को या नर्व की इंजरी को बताती है। ओके, अगर किन केसेस के अंदर करते हैं, ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी या कोई भी नर्व की इंजरी हो जाए, सिंपल है ना, वो हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। और अदर फर्दर सेमेस्टर्स व्हेन यू विल गो टू रीड अबाउट द फर्दर डिजीज और प्रॉब्लम्स, तो वो तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट। यानी कोई भी नर्व की इंजरी है तो डायग्नोसिस विल बी एनसीडी। तो व्हाट विल बी द थेरापेटिक, थेरापेटिक क्या होगा, थेरापेटिक के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन काम लेंगे, दैट इज कॉल्ड एनएमईएस, न्यूरो मस्कुलर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। यानी कि हम लोग नर्व और मसल को इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट कर रहे हैं ताकि वो काम करना शुरू कर दे। तो वी हर्ड अबाउट 4 थिंग्स। इलेक्ट्रोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी के अंदर हमने इलेक्ट्रोथेरेपी क्या होती है, बॉडी की एक्टिविटी, बायोइलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, जो कि हमारी बॉडी के बायोलॉजिकल प्रोसेस से बॉडी के अंदर कुछ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज है, उससे हम पता करते हैं कि डायग्नोसिस क्या है। उसी की वजह से, उसी के साथ को काम में लेते हुए हम लोग क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, दैट इज योर व्हाट वी कॉल थेरेपेटिक ट्रीटमेंट, राइट। तो थेरेपेटिक एंड द डायग्नोस्टिक, बोथ थिंग्स कम्स अंडर दिस कैटेगरी। इफ यू टॉक अबाउट डायग्नोस्टिक, हमने बात की ब्रेन की, तो ब्रेन के अंदर क्या था डायग्नोस्टिक, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम। थेरेपेटिक क्या था, टीडीएस, ट्रांसक्रेनियल ड्रैग स्टिमुलेशन, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट काम में लेता है, एंड अदर थिंग इज योर डीबीएस, जो कि सर्जन्स काम में लेते हैं। अगर हम बात करें मसल्स की, मसल्स के अंदर क्या था, मसल्स इंजरी को हम लोग चेक करते हैं ईएमजी से, दैट इज इलेक्ट्रोमायोग्राफी, एंड वी स्टिमुलेट द मसल थ्रू द हेल्प ऑफ electromyography, through the help of the electrical stimulation. Okay, so now the nerve के लिए हम लोग डायग्नोसिस बेसिकली क्या होगा, व्हाट विल बी डायग्नोसिस फॉर द नर्व के लिए डायग्नोसिस होगा बेसिकली योर नर्व की जो इंजरी हो गई है उसका पता करने के लिए नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट, एंड फॉर द थेरेपेटिक विल यूज द एनएमईएस, न्यूरोमस्कुलर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, और द नर्व स्टिमुलेटर जो कि स्टिमुलेट करेगा नर्व को, राइट। नाउ वी गो फर्दर, इफ यू सी the body bioelectric means the electrical activity of the body has been used for a long time for both diagnostic and the monitoring purpose in the medicine, largely in the connection with the excitable tissue, muscle and nerve. The example included ECG, EMG and EEG that we discussed in earlier our in session only we discussed earlier all about the things जो कि mentioned है। So bioelectrical cells, if you see, every living cell has the membrane potential that I told you earlier. Every nerve or muscles has the resting membrane potential, that is your -90 or -70 for the muscle and nerve, and that is the remain constant if is the some kind of action potential or some kind of stimulus that we are not giving to the body. The cell membrane potential is strongly linked to the cell membrane transport mechanism, in that much of the material that passes across the membrane is ionic charged particles. Thus, if the moment of charged particle changes, then it influences the membrane potential. Membrane potential means जो कि resting था -90 or -70. Conversely, if the membrane potential changes, it will influence the movement of the ions, right? So you can see a diagram here. This is the diagram of the action potential. How the membrane potential change, we'll discuss about it later on. Next हम लोग जो classes लेंगे उसके बारे में हम लोग further discussion करेंगे. Action potential basically होता क्या है? How the membrane change the potential. You can see there are some influx of the ions inside and there is some outflux of the ion outside. There is sodium ion or the calcium your K ions that is go inside and outside. उसकी वजह से हमारा क्या होता है? Resting membrane potential change हो जाता है. So what is the role of the bioelectricity in the human health? I told you earlier, for the diagnosis and for the therapeutic purpose. So we can say in the short term, bioelectricity is the one of the fundamental forms of energy in the human body. In the form of moving ancient potential, it is the basis for such central bodily function as conduction of the motor, autonomic or sensory message along the nerves, muscle contraction and the brain function. Means यानी कि तुम्हारी जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है बॉडी की वो बताती है कि नर्व्स को कैसे काम करना है, मसल्स को कैसे काम में करना है और ब्रेन को कैसे काम में करना है, कैसे सेंसरी जो हम सुनते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, महसूस करते हैं वो बॉडी के अंदर ब्रेन तक जाएगा और उससे कैसे आउटपुट रेस्पॉन्स आएगा यानी कि मोटर रेस्पॉन्स, मूवमेंट रेस्पॉन्स आएगा, दैट्स कंट्रोल्ड बाय द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द नर्व और द मसल ओनली. Then specifically motor nerve signal result in the muscle contraction. I told you a nerve supply to the muscle, अगर एक nerve muscle को supply करती है तो उसका contraction या movement करवाती है. That is your main action of the bioelectrical activity of the body.
Autonomic nerve signals control such basic functions, जैसे I told you, blood pressures and the pain or the heartbeat. The sensory nerve signal collect input from the outside the world, including warning and damage to the body, that is your pain or something. यानी कि जो भी हमारी बॉडी में बाहर से डैमेज हुआ या इंजरी हुई तो बॉडी हमारे सेंसरी सिस्टम क्या करेगा, उसे गेन करेगा. मसल्स के अंदर जब वो जाएगा, यानी पहले ब्रेन के अंदर जाएगा, सेंसरी सिस्टम से सिग्नल्स जाएंगे ब्रेन के थ्रू ब्रेन के पास, और ब्रेन से वापस एक मोटर रेस्पॉन्स या मोटर आउटपुट तुम्हें मिलेगा. उससे तुम जो रिएक्शन लेना है या जो एक्शन लेना है वो फटाक से लेगा. So approaches to electrotherapy means basically we can work on two approaches. Firstly, we can deliver sufficient energy to overcome the energy of the membrane and thereby force it to change behavior. यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोथेरेपी मॉडलिटी या मशीन को काम में ले रहे हैं, एक सफिशिएंट एनर्जी या इलेक्ट्रिकल करंट या थेरेपेटिक करंट डिलीवर कर रहे हैं बॉडी को, और उससे मैक्सिमम आउटपुट या हम बोल रहे हैं वहाँ पे चेंजेस के लिए जो कि हम लोग बाहर के करंट से देके और लाना चाह रहे हैं. मैं एग्जांपल दूंगा तुम्हें. बेसिकली सपोज देयर आर करंट, जिसे हम लोग इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन कहते हैं, कुछ लो फ्रीक्वेंसी करंट्स हम लोग काम में लेते हैं उसके अंदर. अगर सपोज मसल की एट्रोफी है या वीक है, सपोज मेरा बाइसेप्स नहीं है और बहुत ही वीक है और मैं बस स्टिमुलेट करना चाहता हूँ, तो आई कैन यूज द इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन एज द करंट और एज द थेरेपेटिक. उसकी वजह से तुम्हारा बाइसेप्स का जो शेप है वो रिगेन होना शुरू हो जाएगा. यू कैन गेट ए good contraction or the good muscle fiber. Okay, so this is the force it to change in the behavior. The secondly, one can deliver much smaller energy levels and instead of forcing the membrane to change behavior, it can be tickled. यानी कि हम लोग छोटा सा और मिनिमल अमाउंट डिलीवर करते हैं और मेम्ब्रेन के पोटेंशियल में उसमें बदलाव लाते हैं, उसकी वजह से जो हमें रिजल्ट मिलते हैं. इस तरह से हमारी इलेक्ट्रोथेरेपी बेसिकली काम करती है. इन प्रीवियस क्लासेस में वी ऑलरेडी डिस्कस दैट कि हाउ फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स चेंजेस विद द करंट. फिर हम लोग ट्रीटमेंट की डोज डिसाइड करते हैं, डायग्नोस करते हैं, ट्रीटमेंट की डोज डिसाइड करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग डोजियोमेट्री के हिसाब से हम लोग मॉडलिटी चूज करते हैं, देन वी गिव द ट्रीटमेंट. So what is electrophysical agents? We already discussed in the previous classes that electrophysical agents are the modalities that administer thermal, mechanical or any electrical stimulation, lighted energy to the patient to provide physiological effect and the therapeutic benefit. The physiotherapists use these and adjust to other treatment managed techniques in the most of situation. यानी कि हम लोग रैंडमली हम लोग इसी को काम में लेते हैं इलेक्ट्रोथेरेपी मॉडलिटीज को, या फिर हम लोग काम में लेते हैं किसी और ट्रीटमेंट लाइक फिजिशियन के साथ में या फिर सर्जरी के साथ में या फिर मेडिसिन के साथ में और अदर नेचुरोपैथी, एलोपैथी या फिर किसी के साथ में टू गेट फ्रीडम फ्रॉम द पेन और अदर जो भी प्रॉब्लम्स है उसके रिलीफ के लिए हम लोग काम में लेते हैं. तो वी कैन यूज सिंगुलरली और साथ में जो भी हमारी दवाइयाँ, मेडिसिन या फिर ट्रीटमेंट चल रहा है उसके साथ में उसे हम लोग काम में ले सकते हैं. दैट इज योर बेनिफिट ऑफ द मेनली इलेक्ट्रोथेरेपी ट्रीटमेंट. एंड देयर आर लेस कॉन्ट्राइंडिकेशन दैट आई टोल्ड यू अर्लियर, यानी कि जो नहीं अप्लाई करना है वो वाली कंडीशन या फिर प्रिकॉशन और डेंजर्स आर टू लेस with the electrotherapy and the most beneficial that we have. Nowadays companies are manufacturing the small devices that FDA approved, Food and Drug Administrative जो association है उससे approved है, and that you can also use for the pain relieving and other things at your home also. The term physical modality, physical agent modality, electrophysical agent modalities are frequently interchangeable. यानी कि हम लोग modalities कह सकते हैं, electrophysical agents कह सकते हैं जो कि हम काम में ले रहे हैं, या हम लोग कह सकते हैं physical agent modality, और either we can say the physical modality. So I told you earlier the what are the classification, यानी कि किस किस कैटेगरी में डिवाइड होता है. फर्स्ट इज द इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन एजेंट्स, थर्मल एजेंट्स, नॉन थर्मल एजेंट्स एंड द मैकेनिकल एजेंट्स. आई शो यू द चार्ट ऑन द स्क्रीन, यू कैन सी. ये मैं पहले तुम्हें बता चुका हूँ, पुरानी क्लासेज में हम लोग देख चुके हैं कि ये जो है किस तरह से कैटेगराइज किया हुआ है. इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन एजेंट और मॉडलिटीज के अंदर एक क्लासिफिकेशन है, जो भी नाम दिए हुए हैं दीज आर कम्स अंडर द स्टिमुलेशन कैटेगरी. द सेकंड कैटेगरी इज योर थर्मल एजेंट और मॉडलिटी, दैट इज योर thermal agents and modality that provide the temperature variation, यानी heat and cold modality, और जो कि टेम्परेचर को बढ़ाएंगी या कम करेंगी according to the problem we use that. The non-thermal agent and modalities, that is your neither with thermal or neither stimulator, but that will give effect to relieve the symptom of the patient non-thermally. And we have the mechanical agent that include the tractions and that include the elastic bandage, stockings, compression and the hydrotherapy and whirlpool bath, जो कि हमने क्लासिफाइड किया हुआ है और पहले वाले लेक्चर में हमने इसके बारे में डिस्कशन ऑलरेडी किया हुआ है. So if you see what is electrical current,
the flow of charged particles through a conducting medium such as wire called the electrical current. So current is the flow of electrical charges carries electrons, and if you see we can call it therapeutic current that we use for the therapeutic purpose, or electrotherapeutic currents that we are using in our physiotherapy practice. So if you see, the therapeutic currents are special electric currents that are applied to human body for healing the body. Generally these are defined by using voltage time chart of the current, और इसे हम लोग categorize कर सकते हैं. Basically if you see, there are 4 classification given on your screen, यानी according to the direction of the flow of current, according to the basis of frequency, or according to basis of the voltage, or according to the basis of the amperage, or we can say amplitude, right? तो अगर हम फ्लो ऑफ करंट की बात करें, फ्लो ऑफ करंट का मतलब है कि करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, राइट? उसके हिसाब से हम लोग उसको कैटेगराइज कर सकते हैं थेरेपेटिक करंट को. आइदर वी कैन कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी मतलब यू कैन से कि कितना देना है, कितना करंट की वैल्यू को कितना डिलीवर करना है, राइट? सो इफ यू सी ऑन द स्क्रीन, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन of flow of current, there are 2 categories basically. You can see alternating current, we call that AC, and there is a direct current, we call that DC. So there is a picture that showing on your screen. If you see, in DC there is a current is going in one direction only, in the single direction, and in AC it is going in one direction, then it is in another direction, right? So it can be in both direction. So you can define alternating current as the current whose magnitude and direction both changes with time periodically, and it is called alternating current. यानी कि periodically क्या होगा, इसकी time के साथ साथ क्या होगा, magnitude और direction है वो दोनों change होती रहेंगी. If you see alternating current, then it is comprised of a continuous series of alternating pulses, and it mainly used for the contraction of the इनर्वेटेड मसल एंड द पेन कंट्रोल. इनर्वेटेड मसल का मतलब जो नॉर्मल मसल है, जिनको नर्व सप्लाई अच्छी है और जो काम कर रही है, इसके लिए हम लोग अल्टरनेटिव करंट को काम में लेते हैं. ओके, अल्टरनेटिव करंट क्या होगा, एक सीरीज में होगा. पेरियोडिकली क्या होगा, मैग्नीट्यूड चेंज होता रहेगा टाइम के साथ में, और तुम्हारी जो सीरीज होगी, पल्स की सीरीज, यानी कि करंट का जो पल्स आएगा वो एक सीरीज में होगा, शॉर्ट टाइम नहीं होगा. Then you talk about the direct current, the electric current whose direction does not change with the time, whether it's a magnitude change or not, called the direct current. You can see on the screen the current, already I show you earlier कि करंट क्या हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, that is your direct current, right? On the basis of frequency, now you can see on the screen, there is on the basis of the frequency, there are 3 categories basically. That's the most important for the physiotherapist, and all the modalities, all the machines, all the electrophysical agents that works with the electrical current are divided into in these 3 current categories. That is your low frequency current, that is your medium frequency current, and that is your third one is your high frequency current. Low, medium and high frequency currents are the मोस्ट कॉमन कैटेगरी, जिसके अंदर हमारी सारी मॉड्यूलिटी और मशीन कैटेगराइज होती है, और हम सारी मशीनें इसी करंट की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से काम में लेते हैं. तो इफ यू टॉक अबाउट द फ्रीक्वेंसी, तो लो फ्रीक्वेंसी करंट जो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 1 हर्ट्ज टू 1000 हर्ट्ज. इफ यू टॉक अबाउट द मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 1000 टू 10000 हर्ट्ज. इफ यू टॉक अबाउट द हाई फ्रीक्वेंसी करंट, तो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 10,000 टू and 10,000 and above, right? So low, medium and high, these are divided according to 1 hertz to above 10,000 hertz category. हम लोग अलग अलग मशीन के अंदर अलग अलग फ्रीक्वेंसी का करंट काम में लेते हैं, उसकी वजह से हमें अलग अलग जो इफेक्ट जो चाहिए होते हैं, वो हमें रिक्वायर्ड इफेक्ट जो है, डिजायर्ड इफेक्ट है, वो मिलते हैं. आई एम जस्ट शोइंग यू, आई एम नॉट गोइंग इनटू ब्रीफ, आई एम जस्ट शोइंग यू what are the machines, जो कि हमने पहले डिस्कस किया था. there was a chart, green, blue, yellow, the multi color chart was there, and I took that in earlier lecture also. multi color जो चार्ट था उसके अंदर मैंने बहुत सारी मशीन्स के नाम लिखे हुए थे. तो कौन सी मशीन्स किस करंट की कैटेगरी में आती है या काम करती है, वो मैं अभी तुम्हें बता रहा हूँ. देन यू कैन गो फर्दर, हम लोग जो फर्दर क्लासेज होगी उसके बारे में डिफरेंट मॉडलिटीज और डिफरेंट कंडीशंस और डिफरेंट करंट्स के अंदर कौन कौन सी मशीन आती है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे. सो हाई फ्रीक्वेंसी करंट की अगर बात करें तो दैट इज योर शॉर्ट वेव डायथर्मी, जो कि मैं तुम्हें दिखाना चाहूंगा. शॉर्ट वेव डायथर्मी दैट कम्स अंडर योर थर्मल एजेंट और मॉड्यूलिटी, मींस इट गिव द थर्मल इफेक्ट, राइट? यानी एक मशीन है जो
हीटिंग या कोल्ड इफेक्ट देती है। तो शॉर्ट वेव डायथर्मी जो कैटेगरी है तुम्हारी, ये तुम्हारा इफेक्ट देती है थर्मल, यानी कि टेम्परेचर बढ़ता है इससे। और अल्ट्रासाउंड दैट आल्सो कम्स अंडर द थर्मल कैटेगरी, यानी कि अगर हम इलेक्ट्रोफिजिकल एजेंट से मॉडलिटी की कैटेगरी में जाएंगे क्लासिफिकेशन में, तो ये आता है थर्मल कैटेगरी के अंदर। अगर हम जाते हैं, इफ यू गो इनटू द फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट, की करंट की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो ये आता है तुम्हारा हाई फ्रीक्वेंसी करंट के अंदर। देयर इज अ टू ब्यूटीफुल पिक्चर गिवन विद द कंपनी नेम बायोटेक। एक बायोटेक की कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चरर है मॉडलिटीज की, जो मशीनें बनाती है फिजियोथेरेपी की। तो वहाँ की एक मशीन है, इफ यू सी इन द लेफ्ट साइड, दैट इज योर शॉर्ट वेव डायथर्मी एंड वन इज योर अल्ट्रासाउंड, है ना। दोनों थर्मल एजेंट्स हैं या थर्मल मॉडलिटीज हैं जो कि हीटिंग इफेक्ट देते हैं और जो कि हाई फ्रीक्वेंसी करंट यानी कि above 10,000 वर्क करता है। The next one is your medium frequency current. Medium frequency currents यानी कि these comes under the electrophysical agent जो मॉडलिटी से क्लासिफिकेशन था, अगर उसकी हम बात करेंगे तो ये आते हैं किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन कैटेगरी के अंदर। दैट इज द फर्स्ट कैटेगरी, द रेड वन कैटेगरी, तो फर्स्ट कैटेगरी के अंदर आते हैं। और अगर हम बात करें क्या कहते हैं करंट की, कि कौन सा करंट, दैट इज योर मीडियम फ्रीक्वेंसी। मीडियम मतलब 1000 to 10,000, नॉट अबव 10,000, नॉट बिलो देन 1000 हर्ट्ज, राइट। तो इसके अंदर कौन कौन से करंट आते हैं, इंटरफेरेंशियल करंट, रशियन करंट और द रिबॉक्स करंट। और बेसिकली व्हाट आर द मॉडलिटी वी आर यूजिंग फॉर दीज ऑल थ्री करंट, बेसिकली टू करंट्स, इंटरफेरेंशियल करंट और रशियन करंट, दैट इज योर इंटरफेरेंशियल थेरेपी। रिबॉक्स थेरेपी के लिए एक अलग से मशीन आती है, दैट इज कॉल्ड रिबॉक्स सिस्टम या रिबॉक्स मशीन या रिबॉक्स मॉडलिटी, दैट इज ऑल्सो ए मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट। द फ्रीक्वेंसी विल बी 1000 to 10,000। You can see the picture here on the screen. There is a modality given with some kind of wire and the pad and the gels. These are the things we required when applying the modality. Okay, I just took the picture. Okay, the third one is your low frequency current. Low frequency current means very low, 1 hertz to 1000 hertz. We are using 1 hertz minimum current. We are using the frequency of 1000 hertz till 1000, right? तो इसके अंदर कौन कौन सी मशीनें आती है? The first comes under the, that is also a electrical stimulation category. This is also electrical stimulation, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल मॉडलिटी का क्लासिफिकेशन था उसके अंदर ही इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन कैटेगरी के अंदर आती है, राइट। और अगर हम करंट की फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से कैटेगराइज करें, तो इसके अंदर लो के अंदर आता है टेंस ट्रांसक्रेनियल इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। देन यू हैव ऑल टाइप ऑफ स्टिमुलेटर, दैट कैन बी फेरेटिक स्टिमुलेटर और गैल्वेनिक स्टिमुलेटर, और यू कैन से NMES न्यूरोमस्कुलर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, FES functional electrical stimulation, HEPGS high voltage pulse galvanic stimulation. Such kind of modality comes under this category. So this is all about today, and in next class hope we will go further about the alternating current. What are the alternating currents and different type of waveform of the alternating currents, what is the pulse duration, what are the pulse interval, कैसे मशीन्स के अंदर हम लोग सेटिंग्स करते हैं, पल्स को चेंजेस करते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट काम में लेते हैं, डायरेक्ट करंट के कौन कौन से क्लासिफिकेशन है, डायरेक्ट करंट को हम लोग कैसे कांस्टेंट या फिर कांस्टेंट वोल्टेज या कांस्टेंट करंट के साथ काम में लेते हैं। तो जो सारी की सारी करंट की वेव फॉर्म्स हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।